And does it look chapter, does it look the same chapter? We have covered many topics. We have covered pattern, we have covered mirror image. Now we are moving towards the another topic, that is the question based on turn, right? So to understand, before understanding turn questions, we have to see that earlier you have done friction chapter, so now we are just recalling that friction chapter, right? So in friction chapter you must have learned this. If you have a circle, right, if I can divide the circle into many segments and many parts, right? So if I divide the circle into two halves, into two equal parts, each part is called sector. सर्कल का हर एक पार्ट सेक्टर कहलाता है. अगर मैंने एक पोर्शन को शेड कर दिया, if I shade this portion, then if I have to write this shaded portion in fraction wise, then how can I write? I have to write, now the one circle is divided into two parts. So there is, in upper side we write numerator, and in below side we are going to write denominators, right? This is called numerator and this is called denominator. In denominator we put this two, means 1 and 2. The total we have to put in denominator, and the shaded portion, one portion, we will write in numerator. So we will get the fraction 1 upon 2. In the same sense, if I divide the circle into 4 categories, 4 sectors, and if I say that, just tell me what is the part of the shaded portion, then you have to write it down in fraction. You can write simply, what is the total? 1, 2, 3, 4. We have to put 4 in the denominator because the total will come in the denominator side, and in the numerator side we have to put 1 because one part is shaded. So this is the fraction, as you have learned this, right? Now we are coming to our turns. Now we will see that what is turn, right? You have seen that we have many figures, like if I have this marker, if I turn this marker, then turn ho gaya. After this I can turn in this direction also, I can turn in this direction also, I can turn in this direction also, this direction, this direction. तो turn may be in any directions, कुछ भी हो सकता है turn में. वो हाफ टर्न भी कर सकता है, 1/4 टर्न भी कर सकता है, 1/3 टर्न भी कर सकता है, और 1/6 टर्न भी कर सकता है. उसी को आज हम कवर करने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दैट इन टर्न, जैसे हमारे पास एक वॉच होती है, राइट? हम देखते हैं घड़ी में, वी हैव दिस 12, 6, 3, 9. After this we have the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11. Okay, then just understand it. Now मैंने कहा टर्न का मतलब, हाफ टर्न का मतलब, मैंने बताया था आपको कि अगर मैं एक सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करूं, राइट? तो अगर कोई पॉइंट यहाँ होगा और वो हाफ टर्न करना है, तो हाफ टर्न में कोई भी चीज हमेशा अपोजिट साइड में आ जाती है, ठीक है? जब हम किसी भी फिगर को हाफ टर्न करवाते हैं तो वो फिगर हमेशा रियल फिगर के अपोजिट में चली जाती है. लाइक अगर मैं ये हैंड लिया, मैंने दिस इज अ हैंड, इसको मैंने हाफ टर्न करना है. हाफ टर्न का मतलब वो हमेशा अपोजिट साइड में चला जाएगा. इट इज ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन. दिस इज कॉल्ड हाफ टर्न, राइट? सो हाफ टर्न के लिए हमने क्या देखा कि जो ऊपर होगा वो डायरेक्ट नीचे, मींस दिस इज हाफ पोर्शन, ठीक है? सिंपली हम इसको 4 लाइंस में ड्रॉ करके भी देख सकते हैं. ये ऊपर वाला पोर्शन हमारा ये है. जब कोई भी चीज हाफ टर्न करेगी तो वो डायरेक्टली यहाँ नीचे आएगा. दिस इज हाफ टर्न. इसको हमने देखा भी, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो इस कारण से होता है, क्योंकि हाफ पोर्शन तो ये है ना. अगर शेडेड पोर्शन की मैं बात करूं, दिस इज हाफ पोर्शन. तो अगर मुझे हाफ पोर्शन को बताना है तो हाफ पोर्शन कब कंप्लीट होगा? जब यहां से शुरू होगा और यहाँ पे खत्म हो जाएगा. दिस इज अवर हाफ टर्न. तो अगर मैं बात करूं इसी में, अगर हमारा जो मिनट हैंड है, ठीक है, इट इज इन 12. अगर मुझे इस 12 को हाफ टर्न करवाना है तो हाफ टर्न करवाकर ये वाली जो सुई है ये कौन से नंबर पर पहुंच जाएगी? सिंपल सी बात है, मैंने बताया कोई भी सुई या कोई भी फिगर जब हाफ टर्न करता है तो वो हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है. तो इट मीन्स ये जो हाफ टर्न है वो कहाँ चला गया? अपोजिट में. इट मीन्स अब ये वाली सुई घूमकर नीचे की तरफ आ गई. हाफ टर्न. दिस इज कॉल्ड
हाफ टर्न। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस, ठीक है, सबको समझ में आया होगा कि हाफ टर्न हम किसे बोलते हैं। तो सिंपल डायग्राम हमारा हम देख सकते हैं, किसी भी फिगर को हमने जस्ट 4 लाइंस में ड्रॉ कर दिया करो, उस फिगर का देख लिया करो ऊपर पोर्शन, जो भी है ऊपर पोर्शन उसको जस्ट नीचे ले आओ, इट मीन्स उसको उल्टा कर दो, दैट बिकम्स द हाफ पोर्शन। हमने अभी भी हाफ टर्न के बारे में देखा, तो नाउ वी विल सी दैट हाफ टर्न होता कैसे है। यू कैन सी अ सर्कल, देखो आप देख सकते हैं सर्कल है ये। इफ सपोज द सर्कल इज डिवाइडेड टू 2 सेक्टर्स, ये 2 सेक्टर्स में डिवाइड है, 2 पार्ट में दिखाई दे रहा होगा आपको, मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। इफ आई हैव टू टर्न इट हाफ, अब ये ऊपर की तरफ है, उसका एरो देख सकते हैं हम लोग कि ये ऊपर की तरफ है। अगर मुझे इसको हाफ टर्न करवाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, द एरो विल शिफ्ट इन विच डायरेक्शंस, यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, मैंने पहले भी बात की थी। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की जो सुई होती है जिस पोर्शन में चलता है, जिस डायरेक्शन में वो चलता है उसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। तो अब ये वाली जो सुई है आप देख रहे हो ऊपर की तरफ, ये अगर मूव करेगा तो इट विल मूव टू द बॉटम साइड, उल्टा आ गया, देखो पहले वो ऊपर था अब वो नीचे आ गया, दिस इज कॉल्ड हाफ टर्न, इसी को हम हाफ टर्न कहते हैं। तो कोई भी फिगर जब हाफ टर्न करता है तो सिंपल सी बात है वो अपना क्या करता है, अपोजिट में आ जाता है। कोई भी फिगर जब हाफ टर्न करेगा तो वो अपोजिट डायरेक्शन में प्लेस ले लेगा, दिस इज कॉल्ड हाफ टर्न। Now the next figure or the next portion we will going to discuss is 1/4. Like now the next topic is 1/4. What do you mean by 1/4? As you have learned in fraction chapter also, 1/4 means जो टोटल जो होता है उसको 4 पार्ट में डिवाइड करके उसमें से 1 पार्ट इज कॉल्ड 1/4. लाइक यू कैन टेक अ सिंपल एग्जांपल ऑफ द सर्कल। अगर मैं इसमें बोलूँ कि अगर ये शेडेड पोर्शन, ये एक पोर्शन शेडेड पोर्शन है, इफ आई टॉक अबाउट कि बताओ ये शेडेड पोर्शन कितना है, तो दिस पोर्शन इज 1/4, राइट। तो सिंपल सी बात है 1/4 पोर्शन में होता क्या है। 1/4 पोर्शन में अगर मैं वही बात कर रहा हूं, अगर ये पॉइंट आप देख सकते हो, ये एरो मैंने ऊपर की तरफ बनाया है, अगर हमें 1/4 टर्न करना है तो 1/4 टर्न में कितना होगा, आप इस वाले डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन हमारा 1/4 कहलाता है, राइट। सो फ्रॉम दिस पोर्शन टू दिस पोर्शन इज कॉल्ड 1/4। तो दिस इज 1/4 टर्न। किसी भी फिगर को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर देना है और उसके बाद देखना है कि 1/4 पोर्शन हमारा यहाँ पर पहुंच जाएगा। अगर कोई फिगर है, अगर वो ऐसे है सीधे और मुझे उसको 1/4 टर्न करवाना है तो वो ऐसे हो जाएगा। इट मीन्स मैं मार्कर का एग्जांपल ले लेता हूँ, दिस इज मार्कर। अभी इसको मुझे 1/4 टर्न करवाना है तो वो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो दिस फिगर इज इन 1/4। और अगर मुझे इसको हाफ करवाना है तो अपोजिट में चला जाएगा, मैंने बात भी की थी, अपोजिट में हमेशा हाफ हो जाता है एंड 1/4 इज लाइक दिस, दिस इज 1/4। तो सिंपल सा डायग्राम हमें याद रखना है 1/4 का। किसी भी फिगर को अगर हम लोगों ने 1/4 टर्न करवाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट मेक अ लाइन, उस फिगर के ऊपर लाइन बनाओ और उसके बाद देखो कि ये वाला पोर्शन हमेशा अप की तरफ रहेगा, उसके बाद उसको इस पोर्शन में शिफ्ट कर दो, इतने पोर्शन में, ठीक है। दिस इज कॉल्ड 1/4 टर्न। एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, जैसे एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। मैंने एक डायमंड शेप ले लिया है, राइट, मैंने डायमंड शेप ले लिया। अब मुझे इसको 1/4 टर्न करना है। अब मैं इसमें कुछ बना रहा हूं, देखो यहां पर मैंने ये ऐसा बनाया, ठीक है, यहां पर मैंने ये सर्कल बनाया, इधर मैंने स्टार बना दिया और इधर मैंने प्लस बना दिया। नाउ आई हैव टू टर्न दिस फिगर। अब मुझे इस फिगर को 1/2 टर्न करना है, तो उसके बाद जो नया फिगर बनकर आएगा हमें वो बताना है, right? So now what you have to do, simply what you have to do, you have to make a 4 lines। मैंने बताया आपको 4 लाइन बनाना है ऐसे। हमने देखा कि ये ऊपर है तो सिंपल सी बात है ये ऊपर है, 1/4 जब वो टर्न लेगा तो इधर पहुंच जाएगा। इसका मतलब जो ये वाला पोर्शन है ऊपर, वो पोर्शन ऐसे में पहुंच जाएगा। नाउ उसके बाद जब आप फिगर ड्रॉ करोगे तो इसका फिगर कुछ इस टाइप से दिख जाएगा। इसका मतलब जो ब्लैक वाला पोर्शन है वो यहाँ पहुंच गया, सर्कल वाला पोर्शन नीचे की तरफ आ गया, एस्ट्रिक साइन वाला इधर की तरफ पहुंच गया और ये वाला पोर्शन ऊपर की तरफ पहुंच गया। सो नाउ दिस इज 1/4 टर्न ऑफ द फिगर, ठीक है। तो 1/4 फिगर में हमें 1/4 टर्न करवाते हुए पूरे फिगर को ध्यान में रखना है कि जो फिगर है उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड करके देखना है और उसके बाद हमने उसको टर्न करवाना है जस्ट इतने पोर्शन में। और हम देखेंगे जो ऊपर कोई भी फिगर होगा वो अब टर्न होकर इस साइड आ जाएगा।
एंड सारे जो फिगर होंगे वो शिफ्ट होते रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, फिर ये पोर्शन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये पोर्शन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा एंड ये पोर्शन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो दिस इज 1/4 टर्न। तो अभी फिलहाल जब मैंने इस फिगर का 1/4 टर्न किया तो मुझे कुछ इस टाइप से फिगर मिल गया। सो दिस इज कॉल्ड 1/4। आई होप आप लोगों को फिर ये समझ में आया होगा जो 1/4 टर्न को हम लोगों ने पढ़ा अभी। तो 1/4 टर्न के लिए भी नाउ यू कैन सी दैट व्हील हम लोग देखेंगे दोबारा। उस व्हील के बारे में जो मैंने अभी बताया था, मैं उसी व्हील के साथ फिर दोबारा डिस्कस करूंगा कि 1/4 टर्न होता कैसे आखिर। तो देख सकते हैं आप लोग, अभी मैंने ये वाला बनाया, देखो, ठीक है, यू कैन सी दिस, ऊपर की तरफ है एरो, दिखाई दे रहा होगा सबको, राइट। तो 1/4 टर्न में कहाँ आएगा? यहाँ आ जाएगा। इट मीन्स जब वो 1/4 टर्न करेगा ऐसे तो इधर पहुंच जाएगा। दिस इज 1/4 टर्न, राइट। सो इतना पोर्शन, सिर्फ हमारा इतना पोर्शन ही 1/4 टर्न है, सिर्फ इतना पोर्शन। और जब वो नीचे आ जाएगा उल्टे डायरेक्शन में इसका, तो ये 1/2 टर्न हो जाएगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ 1/4 एंड 1/2।